to evaluate these capital budgeting decisions. And these techniques basically includes the payback period, that how much time it will require to recover the initial investment, the NPV, IRR, accounting rate of return, and the different other techniques that are basically being used. And likewise, what we can do is, with the help of the same balance sheet, the different components that we have within the assets and liabilities, we have the current assets of the business organization, the assets which are convertible into cash within 1 year or which are useful to the business organization for less than 1 year. And then we have the current liabilities of the business organization. सर ये जो कैपिटल एसेट की आप बजटिंग की बात करें, कैपिटल बजटिंग एंड कैपिटल इन्वेस्टमेंट, इज इट वन एंड सेम थिंग? It refers to the long-term investments of the business organization. So how those decisions would be taken regarding the long-term investment, these are basically the capital budgeting decisions. Okay. So then there are different components within the assets and liabilities, which are current assets and current liabilities. इनके difference को क्या बोलेंगे? Current assets minus current liabilities. This is known as working capital in the finance. ठीक है, इसको वर्किंग कैपिटल कहते हैं. द फंड्स विच आर अवेलेबल टू द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन टू कैरी आउट डे टू डे बिजनेस ऑपरेशंस. शॉर्ट टर्म एसेट्स, अवेलेबिलिटी ऑफ एसेट्स एंड शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज. जी, ठीक है. सो दिस इज सर इनको यानी करंट एसेट्स भी कह सकते हैं. उसमें अच्छा दो दो पर्सपेक्टिव्स हैं जो है ना उसमें. व्हेन वी टॉक अबाउट द वर्किंग कैपिटल ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, देयर आर टू स्कूल ऑफ थॉट्स. One is one says that there is gross working capital. Gross working capital refers to the current assets of the business organization. What Kosensa was saying, that these are the assets which are available. These are the funds which are available to carry out day-to-day operations of the business organization. But the other school of thought says that there is another concept of working capital, that is net working capital. It means that after paying the liabilities, whatever that is left with the business organization are basically the funds which are available to carry out day to day business operations. दोनों अपनी जगह ठीक है. देखें, करंट लाइबिलिटीज पे करने के बाद जो बचेगा वही तो एक्चुअली आपके पास फंड्स अवेलेबल है ना, जिनको रूटीन एक्टिविटीज में यूज करें. लेकिन ग्रॉस वर्किंग कैपिटल वालों का भी कॉन्सेप्ट ठीक है, इस वजह से कि ये जो करंट लाइबिलिटीज हैं ये भी तो रूटीन एक्टिविटीज ही है ना. सप्लायर्स को आपने पेमेंट करनी है, अकाउंट्स पेएबल को पे करना है, यूटिलिटीज पेएबल हैं, इंटरेस्ट पेएबल हैं. तो these all are routine activities that you have to account for. So either you go for net working capital or you go for the gross working capital. Both concepts are basically parallel use, both are correct. But most of the time when we are talking about the working capital, we are actually talking about the net working capital of the business organization. ठीक हो सेंस? सर वो कहते हैं ना कि जो नॉन करंट एसेट्स हैं वो बेसिकली वो एसेट्स हैं जो विद इन 1 ईयर कैश में कन्वर्ट हो जाएं, जिसमें आपका रॉ मटेरियल भी हो सकता है. और जो करंट एसेट्स हैं वो ये जो नॉन करंट एसेट्स हैं वो बेसिकली लॉन्ग टर्म के हैं. जी जी यही है ना? जी बिल्कुल है. नॉन करंट एसेट्स बेसिकली वी से दैट दीज आर बेनिफिशियल टू द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन फॉर मोर देन 1 ईयर, और दीज आर कन्वर्टेबल टू द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन फॉर आफ्टर 1 ईयर. बेसिकली ऐसा उसमें कॉन्सेप्ट में एक चीज का ज़हन में रखिएगा. व्हेन वी से दैट दीज आर कन्वर्टेबल इनटू कैश आफ्टर 1 ईयर या विद इन 1 ईयर, दिस डज नॉट मींस के नॉन करंट एसेट्स को विद इन 1 ईयर कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते. फॉर एग्जांपल मोटर व्हीकल्स हैं आपके पास, तो क्या उन्हें सेल करना चाहें तो विद इन 1 ईयर सेल नहीं हो सकती? बिल्कुल सही है. हो सकती है. बिल्डिंग है, उसको सेल करना चाहें, बिल्कुल हो सकती है. बट जनरली in normal course of business, when we acquire these assets, the intent is to hold them for more than 1 year. That's why we treat them as non-current assets of the business organization. And current assets are the one which are purchased with this intention that we will get them used, or we will liquidate them, or we will convert them into cash within 1 year. ये ऐसा नहीं है कि हो नहीं सकते, हो सकते हैं, बट इन नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, एज लॉन्ग एज द बिजनेस इज गोइंग कंसर्न, तो वो जो आपके नॉन करंट एसेट्स हैं, दीज आर नॉट कन्वर्टेबल इनटू कैश जनरली, बिकॉज दे आर बेनिफिशियल फॉर मोर देन 1 ईयर. आप रूटीन में बिल्डिंग खरीदते बेचते नहीं है. आपने फैक्ट्री की बिल्डिंग, ऐसा नहीं है कि जी के हर साल बेचते रहेंगे. लेकिन अगर आप प्रॉपर्टी का बिजनेस है, फिर ऑब्वियसली बात है कि उसको इंटेंशन ही है कि बाय करके सेल कर देना है.
तो कहने का मकसद ये है, नॉन करंट एसेट्स आर द एसेट्स व्हिच आर बेनिफिशियल टू बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन फॉर मोर देन 1 year, because these are generally not converted into cash within 1 year, because you have to use them for longer period of time because the business is a going concern. And current assets are the assets which are generally converted into cash within 1 year. They are purchased with the intention that they will get liquidated or get converted into cash within 1 year. And interesting thing is, when we are preparing the financial statements, we are preparing these financial statements with the assumption that business is a going concern. Means that the business will continue its operations in the future. It will not get liquidated. Otherwise, if the going concern concept is not there and it is anticipated the business that business will get liquidated, so what would happen in the balance sheet is, if the business will get liquidated in this year, so the interesting thing is, assets is equal to liabilities plus owners equity. equity. So within the assets, we have said that there would be non-current assets, there would be current assets, and within the liabilities, we have said there would be non-current liabilities and there would be current liabilities. But if the business is going to get liquidated in this particular year, so where would be non-current assets and non-current liabilities? ये तो automatically खत्म हो जाएंगी. ऐसे ही है ना, क्योंकि अगर इसी साल अपने बिजनेस वाइंड अप करना है तो फिर उस सूरत के अंदर जो है ना, there is no long term benefit associated with these things. So all the assets would become the current assets of the business organization if we are preparing the financial statement with this intention that the business is going to get liquidated. Jonas, mein, it's no more a going concern business. And all the liabilities would become the current liabilities because the business will get liquidated and the debts have to be paid off and settled. And more interestingly, कि जो नॉन करंट एसेट्स हैं इनको तो हम ओरिजिनल कॉस्ट पे रिकॉर्ड कर रहे होते हैं जो है उसमें. अब ये जितने भी एसेट्स हैं ये कॉस्ट के ऊपर नहीं रिकॉर्ड होंगे बल्कि अपनी लिक्विडेटेड वैल्यू के ऊपर रिकॉर्ड होंगे. तो ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट की प्रेजेंटेशन है ये टोटली ऑल टुगेदर जो है ना वो चेंज हो जाएगी. ठीक है जी. लगता है सर फिर डिस्कनेक्ट हो गए. Okay ji. So it means that when we are preparing these balance sheets, so we are basically following the going concern concept, Jonas. This thing is clear, ji? I hope it's not Yes, sir. getting too much technical, Joanna. I'm trying to keep it as simple as possible, but just to give you a little bit of the idea that how these financial statements can be used to by the finance manager. Basically, वो एक concept होता है ना कि what is the difference between accounting and finance? Normally, we say that finance starts where accounting ends. तो आप देख लें accounting का जो end result होता है, this is the preparation of the financial statements. And with the help of these financial statements, what the finance manager do, they do the planning function. तो अब यही जो आपकी लाइबिलिटीज और ऑनर्स इक्विटी हैं जो बैलेंस शीट में है, इसी की बेसिस के ऊपर कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, इसी कैपिटल स्ट्रक्चर को हमने कंटिन्यू करना है या इसको चेंज करना है, द फाइनेंस मैनेजर हैज टू मेक द डिसीजंस. इसी बैलेंस शीट की बेसिस के ऊपर किन नॉन करंट एसेट्स को हमने एक्वायर करना है या उनको हमने डिस्पोज ऑफ करना है, ये आपके कैपिटल बजटिंग डिसीजन हो जाएंगे. ये आपके जो करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज बैलेंस शीट के अंदर हैं, इसी की बेसिस के ऊपर ये डिसाइड करना है कि फ्यूचर में वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए कितने करंट एसेट्स होल्ड करने हैं, कितनी करंट लायबिलिटीज हमारे पास होनी चाहिए. एंड लाइकवाइज व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट द ऑनर्स इक्विटी सेक्शन, so within the owners equity, put it here. So this owners equity, you have the issued capital of the business organization. And within this capital, what you do is you will
take into consideration the retained earnings of the business organization. Okay. So how much of the total profit is to be retained by the business organization? How much is to be distributed in the form of dividends? This is basically dividend policy. तो आप देखें वो जो फाइनेंस के मेजर जो कॉन्सेप्ट्स हैं कि कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है, कैपिटल बजटिंग क्या है, आपकी डिविडेंड पॉलिसी क्या होता है, तो ये सारी की सारी इन्हीं जो है ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की ऑफशूट्स हैं. ठीक है जी, क्लियर है? Yes, sir. जी सर. ओके जी, ओके. Okay, Jiran, moving forward, the notes to the accounts. Basically, the notes to the accounts contains the accounting methods and the policies that are basically used. Accounting methods and the policy means okay, which depreciation methods you have used to depreciate the value of the different non-current assets of the business organization. For example, this discussion lies with the accounts manager that they can either use the straight line method of depreciation or declining or double declining balance method of depreciation or any method of depreciation that is basically available to them. In the same way, what are the inventory valuation methods that are basically used by the business organization? Either they have used the first in, first out, they have used the last in, first out, they have used the average method, or they have used the next in, first out NIFO method or any other inventory valuation method. So which type of the inventory valuation or depreciation methods are basically used, which policies are basically used by the business organization, these are mentioned in the notes to accounts. Then the greater detail of summarized figures. इनकम स्टेटमेंट में तो आपके पास सिर्फ वैल्यू गिवन होगी डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की. द अमाउंट इज लेट्स सपोज 35 million. But how this depreciation expense is being calculated, on which assets, how much of the depreciation has been charged, what was the previous depreciation, what is the current year depreciation, which depreciation method has been used, on which type of the assets, the detailed information will be given in the notes to accounts. इसी तरीके से फॉर एग्जांपल आपका इंटरेस्ट एक्सपेंस लिखा हुआ है इनकम स्टेटमेंट में, उस इंटरेस्ट एक्सपेंस को कौन कौन से जो है ना वो आपने डेट्स दिए हुए थे. On those debts, either you have taken them on fixed interest rate or floating interest rate. What was the basically interest rate that is basically charged on that particular loan? That detailed information will be given in the notes to accounts. Then along with that, the changes in the accounting policies and their impact. For instance, previously you were using straight line method of depreciation to depreciate your assets, but in this year you have shifted to the double declining balance method. So you will mention it in your notes to accounts that you have changed this accounting policy. And along with the account change in accounting policy, you will also specify that if you wouldn't have changed, what would have been the profit of the business organization, and because of the change, how much impact it has on the financial performance or financial position of the business organization, just to make the readers of the financial statements aware that change of the accounting policies would have this much of the financial impact on the business organization. That would be disclosed in the notes to accounts. Most of the time the readers do not read these informations, but disclosures are available into the notes to accounts. And details of the off the balance sheet items, if any. अगर कोई बिजनेस की कोई ऑफ द बैलेंस शीट आइटम है तो दैट इज आल्सो मेंशन. ऑफ द बैलेंस शीट आइटम कौन से हो सकते हैं? सर आइडिया नहीं है इसका. ओके जी, अब जैसे मैं आपका क्वेश्चन जो है ना वो लेता हूँ, एक मिनट से मुझे कीजिए. ऑफ द बैलेंस शीट आइटम में इंक्लूड certain liabilities. Let's suppose we give the example of contingent liabilities. Contingent liabilities means the liabilities which may or may not become the liability of the business organization. For example, कोई आपकी जो बिजनेस है उसके अगेंस्ट किसी ने कोई कोर्ट में सूट फाइल किया हुआ है, जो उसमें आपके बिजनेस को सू कर दिया. अब अगर डिसीजन आपके अगेंस्ट आ जाता है तो आपको डैमेजेस जो है ना वो पे करने पड़ेंगे. तो इट मे बिकम अ लायबिलिटी ऑफ योर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. बट इफ द डिसीजन कम्स इन योर फेवर, देन ऑब्वियसली यू डोंट हैव टू पे एनीथिंग. So this liability may, this amount may or may not become the liability of the business organization. That depends on the verdict of the court. Such type of the liabilities are basically called as contingent liabilities. Means the liabilities or the debts which may or may not become the liability of the business organization
दे डिपेंड ऑन द हैपनिंग ऑफ ए सर्टेन इवेंट। अगर वो इवेंट हो गया तो आपकी लाइबिलिटी बन जाएगी, अगर इवेंट ना हुआ तो आपकी लाइबिलिटी नहीं होगी ना। अब क्योंकि ये अभी शॉर्ट नहीं है लाइबिलिटी, यू विल नॉट रिकॉर्ड इट इन द बैलेंस शीट, बट इन फ्यूचर इफ इट बिकम्स द लाइबिलिटी तो ऑब्वियस सी बात है आपकी डेट टू इक्विटी रेशियो की कंपोजिशन चेंज हो जाएगी, आपकी जो डेट रेशियोज हैं उनकी वैल्यूज जो है ना वो चेंज हो जाएंगी, आपकी जो क्रेडिटर्स ने क्रेडिट वर्दीनेस कैलकुलेट की हुई थी उसकी टोटल जो है ना वो वैल्यूएशन जो है चेंज हो जाएगी। तो इस सिचुएशन की वजह से ऑल्दो ये बैलेंस शीट के अंदर तो नहीं स्पेसिफाई बिकॉज इट इज नॉट currently the liability of the business organization, but it in future it may become the liability, उसका disclosure जो है वो notes to accounts में आप specify करेंगे। जी अमजद साहब। सर सर अगर हमने लोन दिया है किसी को, अगर बिजनेस के पैसों में से पेमेंट निकाल के दिया लोन, तो अगर सर वो रिकवर नहीं हो रहा तो इसको हम काउंट करेंगे कि नहीं करेंगे बैलेंस शीट में? जी बिल्कुल, ये 1 मिनट अजान हो रही है, 1 मिनट के लिए काइंडली ब्रेक कर लेते हैं, वेट कर लेते हैं, फिर मैं ओके आपको सर, ओके। देखिए फॉर एग्जांपल आप बैंक से लोन लेते हैं तो क्या उसको बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में जो है वो उसको रिकॉर्ड करेंगे एज अ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन? जी सर, करेंगे। बिल्कुल करेंगे। तो इसी तरह से अगर आप किसी को लोन देते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल नॉर्मल रूटीन के अंदर आप क्रेडिट के ऊपर जो गुड्स सेल कर रहे होते हैं, तो इट्स अ काइंड ऑफ लेंडिंग फैसिलिटी दैट यू आर गिवन टू द पीपल, तो वो लोग आपके अकाउंट रिसीवेबल बन जाते हैं। तो इन केस अगर फ्यूचर में उनसे अमाउंट रिकवर नहीं होती तो उनको हम क्या करते हैं, बैड डेट्स के तौर पे ट्रीट कर देते हैं। ठीक है, तो इट्स अ काइंड ऑफ लॉस फॉर द ठीक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, आपकी इनकम स्टेटमेंट में आप क्या करेंगे, उसको माइनस करेंगे जो है ना उसमें। ठीक है, ठीक हो गया। वैसे ठीक है जी। जी तलाल, आप कुछ पूछ रहे हैं? सर ये मैं ये पूछ रहा हूँ कि ये कॉन्टीजेंट लाइबिलिटीज जो आपने बोला है सर, जब तक चीज अकर ही नहीं हुई तो फिर हम उसको उसके बारे में बॉदर ही क्यों कर रहे हैं? बॉदर इस तो वजह, जब वो जी मैं आंसर देता हूँ। बॉदर इस वजह से कर रहे हैं कि देखें, आपको फॉर एग्जांपल ये इस तरह से था कि आपने एम्प्लॉयज को ले ऑफ किया था और उन्होंने आप पे डैमेजेस क्लेम कर दिए जो है ना उसमें, और अब ये जो लाइबिलिटी है लेट्स सपोज जो है ना मिलियंस के अंदर है, अगर उन एम्प्लॉयज को आपको जो है ना वो देना पड़ता है, तो जब वो मिलियंस की लाइबिलिटी एकदम से आपके जो है ना वो फाइनेंशियल आएगी सिचुएशन में, तो ऑल टुगेदर सारे के सारे वो फाइनेंशियल जो है ना जो एनालिसिस था या इम्पैक्ट था वो चेंज हो जाएगा। तो आपके हिसाब से तो उसको बॉदर करने की जरूरत नहीं है, लेकिन कल जब कोर्ट का डिसीजन हो गया और उसको पे करना पड़ा और पे करने के आप काबिल ना हुए तो फिर क्या होगा, फिर तो बॉदर करने की बात आ जाएगी।
तो इसलिए ये है कि व्हाट यू डू इज कि आप एज अ प्रीएम्प्टिव मेजर उसको मेंशन कर देते हैं। और दूसरा ये है कि जो आपके जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनको भी वो टाइमली इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो जाती है, सो दैट व्हेन दे आर मेकिंग एनालिसिस ऑफ योर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन they can account for such kind of the things जो है ना उसमें, because the full disclosure concept says that all the information related to the business organization must be disclosed to the stakeholders. जो incidents होने वाले भी हैं which can affect your business organization, उनको आपने करना है। Secondly, जब हम conservatism या prudence की बात करते हैं तो that says anticipate all future losses. तो जो फ्यूचर में होने वाले आपके लॉसेस हैं एज एन अकाउंटेंट आपको वो अकाउंट फॉर करने हैं। गेन्स उस टाइम तक नहीं करेंगे जब तक एक्चुअली रियलाइज नहीं होंगे। जी तो इन केस ऐसा ही कोई सिचुएशन है जिसमें आपने ये कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी के तौर पे एक इवेंट किया हुआ है, रिकॉर्ड किया हुआ है, लेकिन वो अगर नहीं होता, मतलब वो केस हमारे हक में आ जाता और हमें नहीं पे करना पड़ता, ठीक है। तो तब तक जो अगर हमने एक्रूरल अकाउंटिंग के थ्रू हर मंथ में या उसमें कुछ कटिंग की है, तो वो क्या प्रॉफिट में शो होगी फिर? नहीं, आप देखें आप क्या करते हैं, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स मेंटेन करते हैं ना। अकाउंट रिसीवेबल एक्सपेक्टेड होते हैं कि जी bad सर, debts करते हैं। होंगे, तो आप उसके लिए प्रोविजंस क्रिएट कर लेते हैं। अब अगर वो बैड डेट्स नहीं होंगे तो प्रोविजन आपके पास अवेलेबल है जिससे आप फ्यूचर जो है ना वो लॉसेस को अकाउंट फॉर कर सकते हैं। तो अब जब तक ये कंफर्म नहीं होता कि वो लॉस नहीं हुआ, उस टाइम तक उस बेनिफिट को आप जो है ना यूटिलाइज नहीं करते। लेकिन क्योंकि प्रूडेंस ये कहता है कि एंटिसिपेट करेंगे फ्यूचर लॉसेस में, तो अभी आपकी सिर्फ एंटिसिपेशन है कि लॉस हो सकता है, तो उसके लिए प्रिकॉशनरी मेजर किया आपने, क्या किया, प्रोविजन क्रिएट कर ली। ठीक है, ठीक है सर। सर जी जी। मैं थोड़ा सा हमारी कंपनी है जो इट इज इन आर्बिट्रेशन विद द कॉन्ट्रैक्टर। जी जी। पिछले कुछ 5-6-7 साल पुराने हो गए बिकॉज स्टॉपेज ऑफ फंड और व्हाटएवर, तो क्लेम उसने कर दिए 5-6 अरब रुपए के कि जी मेरा ये टाइम वेस्ट हुआ है और मेरी अपॉर्चुनिटी लास्ट हुई है। तो वो आर्बिट्रेशन इज नाउ इन प्रोसेस, हमें वी आर ट्राइंग टू डिफेंड इट। तो अब अगर हम इस ये क्लेम किसी न किसी, चलो उसने 6 अरब किया है, अगर ये 1 अरब भी आ जाता है तो डेफिनेटली दैट हैज टू बी पेड। तो जो आप फरमा रहे हैं वो ये तलाल और मेरा ख्याल अबू जर पूछ रहा था सवाल, तो उनके लिए भी है कि वो अमाउंट हम जरूर यहाँ पे इंडिकेट करेंगे, वरना उसका फंड किधर से आएगा। और वो जो कॉन्टिजेंट लायबिलिटीज है दैट मस्ट बी शोन कि दिस इज पॉसिबल कि ये हमें कोर्ट ऑर्डर आ जाए तो हमें ये पे करना पड़े। और बिल्कुल, और अगर नहीं करना पड़ता तो दैट विल बी आवर सेविंग, पे नहीं करेंगे। बिल्कुल ऐसा है, वेरी राइटली सेड। जो है ना उसमें आप देखें ना, अगर गॉड फॉरबिड यही होता है कि आप 1 लेट्स सपोज जो है ना वो बिलियन को एक्सपेक्ट कर रहे हैं, अगर गॉड फॉरबिड 5-6 बिलियन ही हो जाती है और वो आपको फाइनेंशियल डिस्ट्रेस के अंदर ले जाती है, तो आपके जितने इन्वेस्टर्स या स्टेक होल्डर वो तो इस जो है ना इंसिडेंट को एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे थे। तो अगर आपने जो है ना इंफॉर्मेशन उनको डिस्क्लोज नहीं की, तो शायद इस कंसीलमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन की वजह से कंपनी बैंकरप्ट हो जाए और सारी इन्वेस्टमेंट जो है ना वो डूब जाए। एंड सिंस दे वर नॉट मेड अवेयर ऑफ दिस थिंग, तो ऑब्वियस सी बात है कि उसका जो है ना वो जो पर्सपेक्टिव है वो आप पे भी आता है कि यू हैवंट टोल्ड देम द राइट इंफॉर्मेशन बिकॉज ऑफ व्हिच देयर इन्वेस्टमेंट हैज बीन लॉस्ट। तो ऑन योर पार्ट इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट यू शुड डिस्क्लोज दैट इंफॉर्मेशन। इसीलिए बैलेंस शीट में नहीं कर रहे, नोट्स टू अकाउंट्स में कर रहे हैं। और आप खुद भी बेहतर जानते हैं कितने लोग विजिलेंट होते हैं जो नोट्स टू अकाउंट्स को पढ़ते हैं, लेकिन आपने अपना पार्ट प्ले कर दिया, यू हैव टोल्ड देम द इंफॉर्मेशन। If they haven't read it, now this is their mistake. This is a mistake at their part. You are free from the liability. सर यहाँ पे यही मैं थोड़ी सी चाह रहा था, क्लैरिफिकेशन भी चाह रहा था और कुछ ऐड भी करना चाह रहा था कि जब हम ये नोट्स की बात करें, अभी देखिए कि जो बैलेंस शीट है नाउ दिस इज ओपन डॉक्यूमेंट व्हिच इज विजिबल टू ऑल दी जो शेयर होल्डर्स हैं और फॉर दैट मैटर एससीसीपी है और एनी फॉर दैट मैटर एनीबॉडी। अभी जब ये डॉक्यूमेंट ओपन है तो इसके अंदर जो नोट्स लिखे जाते हैं आर दे नॉट यूज्ड फॉर मैनिपुलेटिंग द सर्टेन जो फिगर्स हैं, क्योंकि कंपनी अपने इंटरेस्ट के हिसाब से कुछ ऐसे नोट्स नहीं सॉरी टू कट यू, वो उसमें इसका कोई ताल्लुक नहीं है। देखें, नोट्स बेसिकली कंप्राइजेस ऑफ द डिटेल्ड इंफॉर्मेशन।
that detailed information is provided to the shareholders now or the stakeholders. Now it is their responsibility to use that information. It's not like that information has been concealed. और दूसरी जो बात कर रहे हैं, अगर आप ये कहते हैं कि वो सारी चीजें जो है एनुअल रिपोर्ट्स के अंदर ही जो है ना वो शेयर होनी चाहिए, तो जस्ट थिंक ऑफ ए कंपनी जिसके आपकी देखें नोट्स टू अकाउंट्स अगर आप देखें तो सम टाइम दीज कंप्राइज ऑफ हंड्रेड्स ऑफ पेजेस, ठीक है, 70-80 पेजेस के तो जो है ना वो नोट्स टू अकाउंट्स आ ही जाते हैं। तो अगर फॉर एग्जांपल आप ये सोचें कि आपकी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उन्हीं में हर चीज की जो है ना डिटेल देनी शुरू कर दें, तो जो एक बैलेंस शीट आपको 2 पेजेस पे या 1 पेज पे आती है वो 70 पेजेस की बैलेंस शीट बन जाए, तो मुझे बताएं उसकी अंडरस्टैंडिंग का क्या लेवल हो या उसकी अंडरस्टैंडिंग क्या रह जाए। तो इट वुड मेक इट ये बात आप जी सर, ये वाली बात तो आप ठीक कर रहे हैं सर कि उसके अंदर, बट मेरा कहने का मकसद ये है कि जब हम बात करें कि एक कंपनी जो है एक डिफरेंट मेथड यूज कर रही है उसकी कैलकुलेशन के हिसाब से या अपने मतलब ये डिप्रिसिएशन वाला एस्पेक्ट है और फॉर दैट मैटर एनी अदर, वो अपने एंगल से कर रही है जो विच सूट्स दैट पर्टिकुलर कंपनी। बिल्कुल। तो इसके अंदर मतलब ये कि इन अदर वर्ड्स दे आर ट्राइंग टू मैनिपुलेट और सेटिस्फाई देयर अकाउंटिंग प्रोसेस। तो इसमें एक जो स्टैंडर्डाइज्ड जो मेथोडोलॉजी है, इज इट नॉट मोर सुटेबल के जिसके अंदर एक स्टैंडर्डाइज हो फॉर एवरीबॉडी, not using different methods and I mean techniques? ओके ठीक है। अब उसमें एक तो चीज ये है कि it is on one side it is the way or how the company is presenting those things, the other is how the people are getting those things जो है ना उसमें। तो as a financial analyst, as a user of the financial information, अब आपको जो है ना वो थोड़ा सा इसमें जो है ना वो अवेयर होना पड़ेगा कि what methods they are basically used। जैसे सम टाइम जो है ना वो रेशियोज जो है ना वो स्पेसिफाइड होती हैं, तो रेशियोज तो कैलकुलेट करने के डिफरेंट मेजर्स हैं, तो उसी वजह से लिमिटेशन में स्पेसिफाई किया जाता है कि मे बी द आइटम्स दैट आर बीइंग यूज्ड इन दोज रेशियोज मे नॉट रिफ्लेक्ट द ट्रू एंड फेयर रिप्रेजेंटेशन। तो ये सेशन बिल्कुल एंड होने वाला है, वी जस्ट एंड दिस सेशन एंड वी विल रीस्टार्ट इट आफ्टर जस्ट 5 to 7 minutes ब्रेक, उसके बाद जो है ना स्टार्ट करते हैं, देन वी विल कंटिन्यू द डिस्कशन फ्रॉम वेयर वी हैव लेफ्ट। ठीक है जी सर, एक बात करनी थी। जी सर, जो हमारा लास्ट लेक्चर था वो